देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 3 ମାସ ଯାଏଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଳକଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ମାସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଓଭରଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ। ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନମ୍ବର 2, ବଦଳିବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି ଟର୍ମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନପାରିଲେ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏକାଡେମିକ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗ ସିଲାବସ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ନା ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ 70% ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ସମସ୍ତ ପାର୍କିଂରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କିଂରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଉ ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାରେ ସାର୍ବଜନୀନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, 5 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଆଖୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ଆଖୁର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 285 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜାରରେ ଚିନି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖୁ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 290 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଆଖୁ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଏହାର ଦର 360 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୃଷକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 26ରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଖୋଲିଲା ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଗତ 23 ତାରିଖଠାରୁ ସ୍ତୂପ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଅନୁମତିପତ୍ର ମିଳିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ନିକଟକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ 12ଟି ସଟଲ ବସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାକି 4ଟି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ଦେଖିପାରିବେ 50% ଦର୍ଶକ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶୋ ଏବଂ 7:15ରୁ 7:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 7, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଦାୟର 3ଟି ପୃଥକ ମାମଲାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ପରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଅନଲାଇନରେ ହେବ ଲ ପରୀକ୍ଷା।
शेष में आईन छात्र छात्री दाबी को मानि नहीं विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष सेमानक स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टि में रखी ऑनलाइन रे लॉ परीक्षा करने को सहमति प्रकाश करिसेंती। उत्कल विश्वविद्यालय अधीन रे समस्त आईन महाविद्यालय रे ऑनलाइन रे परीक्षा हेबो बोली बुधवार विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक सूचना दैछंती। नंबर 9 विद्युत चालित जान किणिले रिहाती देबे राज्य सरकार। प्रदूषण रोकवाक दिल्ली मॉडेल आपणब ओडिशा। विद्युत चालित जान किणिले लोकंकु मिलिबो रिहाती। 2 चकिया जान पई 5000 टंकार रिहाती दियाजिबो सह 3 चकिया जान पई 12000 और 4 चकिया जान पई सर्वाधिक 1 लाख टंका रिहाती मिलिबो। सरकारी ऑफिस और कंपनी विद्युत चालित जान किणिले रिहाती अधिक मिलिबो। आसंता कैबिनेट रे एही ई जान नीति आसीबो बोली परिवहन विभाग पक्षरु कह जायछि। विद्युत चालित जान किणिले रोड टैक्स और पंजीकरण फी छाड़ करा जाई पारे। विद्युत चालित जान निर्माण को प्रोत्साहित करबा पई राज्य सरकार एही सबु सुविधा जोगई देबे बोली जणा पड़िछि। विद्युत चालित जान किणिबा नै प्रोत्साहित करबा सह यंत्रांश बैटरी प्रस्तुति को मध्य प्रोत्साहित करिवे राज्य सरकार। राज्य सरकारी कर्मचारी विद्युत चालित जान किणिले सेमानकु 100% सुधमुक्त ऋण प्रदान करा जिवो। नंबर 10 जातीय शिक्षा नीतिर प्रथम वर्ष उपलब्धि पुस्तक लोकार्पण कले धर्मेंद्र। जातीय शिक्षा नीतिर प्रथम वर्ष पूर्ति उपलब्धि संबंधित एक पुस्तक एवं जातीय शिक्षा नीति अधीन रे एनसीईआरटी और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मिलित आनुकूल्य रे विद्यालय छात्र छात्री प्रस्तुत 4टी नुआ उपक्रम को काली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं सामाजिक न्याय और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री विजेंद्र कुमार लोकार्पित करिसेंती। केंद्र मंत्री लोकार्पित करिथिबा 4टी उपक्रम हेला निपुण भारत मिशन अधीन रे मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पई ई संबल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान वर्चुअल स्कूल, एनसीईआरटी रो वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर 2021-22 एवं पीरियड एक्सेसिबिलिटी वॉरियर नामक कॉमिक बुक। नंबर 11 घोषणा हेला बिजू पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान। चलित वर्ष पई बिजू पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान पाइबाकु थिबा व्यक्तिंका नाम घोषणा करा जायछि। हॉकी कोच काडू चौधरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रे सम्मानित करा जिवो। सेहीपरि श्रेष्ठ क्रीड़ाविद भावे अमित रोहिदास, श्रेष्ठ कोच शिवप्रसाद दास को मिलिबो पुरस्कार। आसंता 29 तारिख रे क्रीड़ा दिवस पालित हेबाकु थिबा बेले एही अवसर रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही सम्मान प्रदान करिवे। राज्य रे क्रीड़ा को प्रोत्साहन देबाकु राज्य सरकार एही पुरस्कार घोषणा करिसेंती। क्रीड़ा क्षेत्र रे उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करुथुवा व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ एही सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान करा जाउछि। तेबे चलित वर्ष क्रीड़ा सांबादिक अवार्ड को बातिल करा जाइछि। नंबर 12 अफगानिस्तान नागरिक पई केवल ई वीसा कहिला गृह मंत्रालय। भारत को आसिबा पई समस्त अफगानिस्तान नागरिकों को केवल जरूरीकालीन वीसा बा ई वीसा जोगे दियाजिबो बोली गृह मंत्रालय कहिछि। अनेक अफगानिस्तान नागरिकों पासपोर्ट जबत किंबा हजिजिबा खबर पाइबा परे ए निष्पत्ति निया जाइछि। भारत रे थिबा अफगानिस्तान नागरिकों व्यतीत अन्य समस्त अफगान नागरिकों पुराना वीसा अवैध विवेचना कराजिबो बोली मंत्रालय कहिछि। अफगानिस्तान रे जारी संकटजनक परिस्थिति एवं वीसा जारी प्रक्रिया को सरल कर जाइथिबारु एबेठारु समस्त अफगानिस्तान नागरिक केवल ई वीसा जरिया रे भारत आसी पारिबे बोली मंत्रालय स्पष्ट करिछि। नंबर 13 रविवार सुधा बंगोपसागर रे लघुचाप कहिला स्काईमेट। अगस्ट मासरे वर्षा नियंट देखा देइथिबा बेले मास शेष बेड़को बंगोपसागर रे सृष्टि हेबाकु थिबा लघुचाप स्थिति रे टिके सुधार आनी पारे बोली घरोई पाणीपाग संस्था स्काईमेट कहिछि। स्काईमेट कहिथिला जे अगस्ट 30 सुधा बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि, किंतु काली स्काईमेट निजर पूर्वानुमान को टिके संशोधित करी कहिछि जे एही लघुचापटी 29 तारिख बेड़को सृष्टि हेबो। एहा पूर्वरु 27 तारिख सुधा बंगोपसागर रे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि हेबो। परवर्ती 2 दिन रे एहा आउरी घनीभूत होई पूर्व केंद्रीय और उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो। फल आसंता 27 ରୁ 29 मध्य ओडिशा, पश्चिमबंग, झारखंड, बिहार आदि राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। नंबर 14 ईडी और सीबीआई को प्रधान विचारपति भर्सना। सांसद और विधायक माने जड़ित मामलागुड़िकर चार्जसीट दाखल में विलंब हेउथिबारु भारतर प्रधान विचारपति एनवी रमन्ना काली प्रवर्तन निर्देशालय एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भर्सना करिसेंती। एक मामलार शुणाणी बेले से कहिसेंती तदंत कार्य बाकी थिले तुरंत ताहा शेष करी चार्जसीट दाखल कर, मामला को अଯଥାରେ पकई रख नाही। कालीर एही शुणाणी रे से आहुरी मध्ये कहिसेंती सांसद एवं विधायक संश्लिष्ट थिबा घटना रे निजाळु मामला रुजु करी तदंत करिबा लागि एक पूर्व आदेश रे मध्ये आंबे उच्च न्यायालय मानकु कहि सारिछु। नंबर 15 भारत में कोविड-19 एक प्रकार स्थानीय रोग पर्याय को गति करिपारे कहिले हु वैज्ञानिक। निम्न अथवा मध्यम धरणर संक्रमण व्यापुथिबारु भारत में कोविड-19 एक जातीय आंचलिक रोग पर्याय को गति करिथाई पारे बोली विश्व स्वास्थ्य संगठनर मुख्य वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन एक साक्षात्कार रे कहिसेंती। जनता भूताणु सह चढ़ी शिखिबा पर्याय को एंडेमिक स्टेज बा स्थानिक अवस्था अथवा स्थानीय रोग किंबा देशीय रोग कुहाଯାଏ, किंतु एही अवस्था जनसाधारण को बेकाबू करि पकाउथिबा महामारी स्तर ठारू अति भिन्न। तांको मतरे भारत भूखंडर विशाल आकार, जनसाधारण गुणसूत्रीय विविधता एवं
देशर विभिन्न अंचलर जनतांको रोग प्रतिरोधक शक्तिर स्थिति जोगुं एभଳି हेबार संभावना अछि। फଳରେ देशर विभिन्न प्रांतरे कोविड-19 संक्रमण रे ह्रास वृद्धि लागि रही पारे। जदि 2022 सुधा 70% जनतांको टीका दिया जाई पारे तेबे परिस्थिति स्वाभाविक होइजिवो। नंबर 16 वायुसेनार मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त। बुधवार राजस्थान बाल्मेर जिला अंतर्गत भुटारिया गाँव में बड़ दुर्घटना घटी। वायुसेनार मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त होइछि। तेबे विमान उड़ाउथिबा पायलट माने सुरक्षित अछंती। दुर्घटना नहीं खबर जना पड़िबा परे स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस घटनास्थल में पहुंचीथिले। तेबे दुर्घटनार कारण यांत्रिक त्रुटि बोली वायुसेना पक्षरु ट्वीट करी कुहाଯାଇଛି। एथिसह तदंत निर्देश दिया जाइछि बोली वायुसेना पक्षरु कुहाଯାଇଛି। नंबर 17 विमान बंदर रास्ता अवरोध। अफगानिस्तानवासी को छाड़िब नाही तालिबान। स्थानांतरणकारी विमान आरोहण निमंते काबुल विमानबंदर को जाउथिबा अफगान नागरिक माननकु अटकेइबे बोली तालिबान माने कहिसंती। किंतु विदेशी नागरिक माने विमानबंदर अभिमुखे जाई परिबे बोली मंगलवार दिन सांबादिक सम्मेलन रे उद्बोधन देई तालिबान मुखपात्र जबीउल्लाह मुजाहिद कहिसंती। से कहिसंती विमानबंदर को पड़िथिबा रास्ता अवरोध करा जाइछि। अफगानिस्तान माने से बाटे विमानबंदर को जाई परिबे नाही। किंतु विमानबंदर को पड़िथिबा से रास्ता रे विदेशी नागरिक माननकु यात्रा पई अनुमति दिया जाइछि। जबीउल्लाह मुजाहिद कहिसंती आजिकाली काबुल विमानबंदर रे गहड़ी जमाउथिबा अफगानिस्तान माने घर को बाहुड़ी आसिबा उचित। सेमानंको परे तालिबान प्रतिशोध नेबे नाही बोली से प्रतिश्रुति दैछंती। नंबर 18 बुझामणा पई पंचसी रे प्रतिरोधकारी शक्ति को भेटिले तालिबान प्रतिनिधि दल। बुझामणा पई 40 सदस्य विशिष्ट तालिबान प्रतिनिधि दल पंचसी रे प्रतिरोधकारी शक्ति को भेटिथिले। किंतु उक्त आलोचनार फलाफल अस्पष्ट रहिछि। तालिबान विरोधी दल ट्वीट करिसंती दुईटी उपाय अछि। सेमाने खोरसान जनतांको नैतिकता ग्रहण करिवे नतुबा प्रतिरोध घोषणा कराजिवो। तालिबान क्षमता अधिकार करिबा परे निजको अफगानिस्तान कार्यनिर्वाही राष्ट्रपति घोषणा करिथिबा विताड़ित उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले प्रतिरोधकारी शक्ति रे शामिल होइछंती। से कहिछंती कि केवल उल्लेखनीय बुझामणा गुडी को ग्रहण कराजिवो। बुझामणा विफल हेले जेकोसी प्रकार चरम परिणति पई प्रतिरोधकारी शक्ति प्रस्तुत अछंती। नंबर 19 राज्य 887 जन पॉजिटिव चिन्हट 69 जनकर मृत्यु। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 887 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। अनुगुड़ 27, बालेश्वर 56, बरगढ़ 9, भद्रक 9, बौद्ध जड़े, कटक 119, देवगढ़ 9, ढेंकानाल 16, गजपति 3, गंजाम 2, जगतसिंहपुर 37, जाजपुर 43, झारसुगुड़ा 5, कड़ाहांडी जड़े, कंधमाड़ 2, केन्द्रापड़ा 15, केउझर 19, कोरापुट 4, मालकानगिरी 2, मयूरभंज 31, नवरंगपुर 2, नयगढ़ 11, नुआपड़ 3, पुरी 39, रायगढ़ 2, संबलपुर 21 और सुंदरगढ़ 7 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। देश में 24 घंटा मध्य 37,593 नूतन संक्रमण और 648 मृत्यु रेकर्ड करा जाइछि। राज्य में दिनक मध्य 69 जन कोविड आक्रांतंकर मृत्यु घटिछि। नंबर 20 तालिबान कार्यकलाप को देखि निष्पत्ति नियाजिवो कहिले बाइडेन। अगस्ट 31 सुधा निजर सैन्य मानक अफगानिस्तान फेरी आनिबाकू अमेरिका लक्ष्य रखिछि बोली अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहिसंती। सप्त राष्ट्र गोष्ठी अर्थात G7 नेतृवृंद को उद्बोधन दे बाइडेन कहिसंती तालिबान को नहीं निज आभिमुख्य रे G7 यूरोपीय संघ राष्ट्र समूह एवं उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन बा नाटो सदस्य राष्ट्र गुड़िक एकत्रित रहिबाकू निष्पत्ति नैछंती। अमेरिका सरकार तालिबान कार्यकलाप उपरे नजर रखिछंती। ताहाको आधार करी की पदक्षेप नियाजिवो ता स्थिर कराजिवो। नंबर 21 38 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स लीक है डाटा। माइक्रोसॉफ्ट एक आप बिल्डिंग टूल डिफॉल्ट सेटिंग जोगु 38 मिलियन यूजर्स डाटा लीक होइछि। सिक्यूरिटी फर्म अपगार्ड यह प्रकाश करिछि। यूजर्स डाटा माइक्रोसॉफ्ट सर्विस स्टोर रे भूल रे रहिबा जोगु यह लीक हो जाइथिला। पावर ऑफ टूल वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप द्वारा कंपनी लोकों सीधा कथबार्ता करने को अनुमति देई थाए। माइक्रोसॉफ्ट रही भूल जोगु अमेरिकार सरकारी संस्था एवं अन्य 47 संगठनर डाटा संपूर्ण भाव लीक हो जाइथिला। अवश्य माइक्रोसॉफ्ट कम समय मध्य डाटा को सुरक्षित रखिबारे आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिथिला। नंबर 22 तालिबान रो सरकार गठन पई प्रस्तुति नुआ मंत्रिमंडल गठित। अफगानिस्तान को दखल करिथिबा तालिबान एबे सरकार गठन करिबा प्रक्रिया आरंभ करिछि। विधिबद्ध भावे सरकार गठन करिबा पूर्वरु तालिबान बहु गुरुत्वपूर्ण पदवी गुड़िकरे नेता नियुक्त करिछि। तालिबान पक्षर अफगानिस्तान रे नुआ अर्थमंत्री आरंभ करी गुइंदा विभाग मुख्य पदवी जाए विभिन्न नेतांक ना घोषणा कर जाइछि। तालिबान अफगानिस्तान नुआ अर्थमंत्री भावे गुल आघा को नियुक्ति देइछि। सेहीपरि सदर इब्राहिम अफगानिस्तान कामचला आभ्यंतरीण मंत्री भावे कार्य करिवे। यह बाद तालिबान अफगानिस्तान केंद्रीय बैंक कामचला मुख्य पदरे मध्य जनक नियुक्ति देइछि। अन्य पक्षरे सरकार गठन प्रक्रिया आगक नेबाई तालिबान 12 जणिया परिषद गठन करिछि। एही परिषद ही अफगानिस्तान विभिन्न प्रसंग में चूड़ांत निष्पत्ति नेब। सूचनायोग्य अगस्ट 31 पर तालिबान अफगानिस्तान रे विधिबद्ध सरकार गठन करिपारे।
नंबर 23 बीएसएफ आईटीबीपी एवं बीपीआरएनडी रो महानिर्देशक नियुक्त सीमा सुरक्षा बल रे नुआ डीजी भावे आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह नियुक्त होइछंती। एबे से बीएसएफ रे स्वतंत्र डीजी भावे कार्य करूछंती। 31 अगस्त रु डिसेंबर 31 जाए से एही दायित्व रे रहिबे। 1988 बैच रो राजस्थान कैडर आईपीएस ऑफिसर हेउछंती पंकज सिंह। सेही बडी सीआरपीएफ रो स्पेशल डीजी संजय अरोरा आईटीबीपी रो नुआ डीजी भावे नियुक्त होइछंती। एबे आईटीबीपी रो डीजी थिबा आईपीएस अधिकारी एसएस देशवाल 31 अगस्त रे अवसर नेबे। अन्यपटे ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रो महानिर्देशक भावे आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव को नियुक्ति करिसेंती भारत सरकार। नंबर 24 ओपीएससी को नहीं विवाद मूल्यांकन रे त्रुटि अभियोग आनिले परीक्षार्थी। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड विवाद पर एबे ओपीएससी बा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन को नहीं विवाद देखा देइछि। त्रुटिपूर्ण परीक्षा सह यूपीएससी परीक्षा समय चलित वर्ष पुणी ओपीएससी परीक्षा करने निष्पत्ति को विरोध करिसेंती परीक्षार्थी। 2017 मसीह रजत कुमार मिश्रा नामक जड़े परीक्षार्थी ओपीएससी परीक्षा देइथिले हेले त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन जोगु से मेरिट लिस्ट रु बाद पड़िथिबा अभियोग करिसेंती। परीक्षा खातार नकल पाइबा परे से जानिबाकू पाइछंती जे तांकर मूल्यांकन रे त्रुटि थिला। ए बाबद रे से बारंबार अभियोग करिबा परे मध्य कोनोसी पदक्षेप कर्तृपक्ष नहीं नथिबा से अभियोग करिसेंती। एमिति के जड़े परीक्षार्थी गोटे विषय परीक्षा न देई मध्य मेरिट लिस्ट रे तांकर ना बाहरी थिबा से अभियोग करिसेंती। परीक्षा फल प्रति वर्ष बाहर न करी जानिशुनी विलंब करी परवर्ती वर्ष पई किबडी परीक्षा करा जाउछि बोली प्रश्न करिसेंती। ए नै ओपीएससी पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारी नाही। नंबर 25 अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक। तालिबान रो अख्तियार को आसिबा परे अफगानिस्तान रे उपजुथिबा विशृंखलित परिस्थिति रे उद्विग्न होई विश्व बैंक एही युद्ध विक्षत इस्लामीय देश को आर्थिक सहायता प्रदान बंद करिछि। विश्व बैंक रो दैनिक मुखपात्र कहिसंती तालिबान क्षमता अख्तियार करिबा परे सेठारे उपजुथिबा परिस्थिति जोगु विशेष करी नारी मानक भविष्यत लागि भीषण उद्विग्न बोली विश्व बैंक कहिछि। से आहुरी मध्य कहिसंती आमे अफगानिस्तान रे चढौथिबा अभियान बाबद देय अटकई देई परिस्थिति उपरे तीव्र दृष्टि रखिबा सह तार समीक्षा मध्य करूछु। संप्रति अफगानिस्तान रे विश्व बैंक 2 डजन रु अधिक विकासमूलक प्रकल्प चढ़ाई। अधिकांश प्रकल्प को मंजूरी भित्तिरे 2002 मसीह 5.3 बिलियन डॉलर आर्थिक सहायता जोगई देइछि। एहा पूर्वरु इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड मध्य अफगानिस्तान रे अभियान स्थगित करिछि। नंबर 26 तालिबान क्षमता को आसिबा परे पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य बढ़िला व्यवसाय। तालिबान अफगानिस्तान को दखल करिबा परे पाकिस्तान सह संपर्क निबिड़ होइछि और अफगानिस्तान दखल परे गत सप्ताह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मध्य वाणिज्य 50% वृद्धि पाइछि। स्थानीय गणमाध्यम रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି जे अफगानिस्तान रो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहिछि जे गमनागमन रे समस्या सत्वे वाणिज्य वृद्धि पाइछि। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्षरु कहुଯାଇଛି जे बैंक बंद हेतु जदियो अर्थ लेनदेन क्षेत्र में समस्या देखा जाउछि किंतु अफगानिस्तान रो रप्तानी एवं पाकिस्तान रो आमदानी रे वृद्धि घटिछि। अन्य पक्षरे ईरान मध्य समान कथा कहिछि। देश रे तालिबान आसिबा परे गैस एवं अशोधित तैल रप्तानी वृद्धि होइछि बोली ईरान पक्षरु कहुଯାଇଛି। नंबर 27 कानारा बैंक रो 1.59% अंश ग्रहण कले राकेश झुंझुनवाला। राष्ट्रयत्त कानारा बैंक अंशधन अधिग्रहण करिसेंती राकेश झुंझुनवाला। भारतर वारेन बफेट भाव में परिचित राकेश झुंझुनवाला 2021 एप्रिल रु जून मास मध्य कानारा बैंक 1.59% अंश अधिग्रहण करिसेंती। ए संपर्क में कानारा बैंक पक्षरु बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अवगत करा जायछि। राकेश झुंझुनवाला कानारा बैंक 1.55% अंशधन आकार में प्रत्येक 10 टंका फेस भैल्यू 2,88,50,000 शेयर अधिग्रहण करिसेंती। नंबर 28 लीड्स रे आत्मसमर्पण 78 रन रे भारत ऑल आउट। लॉर्ड्स रे जबरदस्त विजय हासिल करिथिबा टीम इंडिया एठारे आरंभ होइथिबा तृतीय टेस्ट रे माटी कामुडिछि। टॉस जीति प्रथमे बैटिंग नैथिबा भारत इंग्लिश पेसरंक घातक बोलिंग आगे आत्मसमर्पण कर देइछि। जहा फଳରେ भारत प्रथम इनिंग्स रे मात्र 78 रन रे ऑल आउट होइछि। भारतर रोहित शर्मा 19 और अजिंक्य रहाणे 18 को छाड़ीदेले बाकी कौनसी बैट्समैन 2 अंक छुई पारि नाहांती। नंबर 29 राजस्थान रॉयल्स टीम रे विश्वर 1 नंबर बॉलर। इंडियन प्रीमियर लीग रो 14तम संस्करण रो द्वितीय पर्याय आउ मासरु कम समय बाकी रहिला। एहा पूर्वरु राजस्थान रॉयल्स एक बड़ खेलाड़ी को निज टीम रे शामिल करिछि। राजस्थान रॉयल्स दुनिया 1 नंबर टी20 बॉलर तबरेज शमसी सह चुक्ति करिछि। दक्षिण अफ्रिकार एही चाइनामैन बॉलर गत किछि मैच रे दमदार प्रदर्शन करिसेंती। शमसी ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलर एंड्रयू टाई को स्थान नेबे। 31 वर्षीय शमसी दक्षिण अफ्रिका घरोई क्रिकेट रे टाइटन्स पक्षरु प्रतिनिधित्व करंती। 2017 रे दक्षिण अफ्रिका पक्षरु डेब्यू करिथिबा शमसी 39 टी20 मैच खेली 45 विकेट नैछंती। सेहीपरि से 37 दिनिकिया रे 32 विकेट अख्तियार करिसेंती। नंबर 30 विश्व कनिष्ठ भलीबॉल नाइजीरिया को हरी भारतर अभियान। ईरान रो तेहरान ठारे आयोजित 19 वर्षरु कम विश्व भलीबॉल रे भारत प्रभावशाली विजयरु तार अभियान आरंभ करिछि।
निज प्रथम मुकाबिला रे आत्मविश्वास भरा भारतीय दल 3-1 रे आफ्रिकीय राष्ट्र नाइजेरिया को परास्त करिछि। भारत पक्षरु तानिश चौधरी सर्वाधिक 21 और अमन कुमार 19 पॉइंट हासिल करथिले। भारत एही प्रतियोगिता रे पोलैंड, नाइजेरिया और ग्वेतमाला सह पूल ए रे स्थान पाइछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।